Dear students, welcome to this new lecture on vector calculus, which is a part of your paper 3. So far in my lectures delivered to BSc first year, I have taught you trigonometry. Especially we have focused on extension of various trigonometric functions or logarithmic functions or exponential functions to complex domain, or can say that we have extended the idea of those functions from real numbers to complex numbers. I have already given you a lot of homework, around 50 to 60 questions or more than that if we combine both books, Epsilon publication or Krishna publication or any other book like that. So there are many questions to try. So today I am beginning the new topic, that is vector calculus, to give you some time to practice those questions. You know that what is the difference between those scalar and vector quantities? No need to tell you about that. The things that have only magnitude are obviously scalar quantities, and the things which have magnitude and direction both are vector quantities. Suppose you take 2 kg sugar, it's not a vector quantity, while if you apply a 2 kg force in some particular direction, then it becomes a vector quantity. So the things that you must know, and you have already seen those things in your previous year courses, are basically what is a vector quantity, that you already know, and I have explained it to some extent. But again, I would recommend you to revise all those topics from your 11th or 12th course or books. Basically, how would you geometrically represent addition, subtraction of vector quantities? How would you take product of two vector quantities? For example, what will be the direction of the cross product? What would it represent if you are given two vector quantities, suppose vector A and vector B? Then what is actually represented by the cross product of these two vector quantities, and what is actually dot product of two vector quantities, and how would you determine work done by a force, like that. So there are many things that you have to revise about these vector quantities. I tell you some details about it, which are really important for you to know in this year course. For example, I am going to tell you how would you represent vector quantities in 3D, or how would you decompose the components of a given vector quantity along the three axes. So before that, I am going to tell you what is the three-dimensional Cartesian system. Suppose that you take a point as reference point and call it origin, and then keep in mind that these two directions that I'm showing right now, OX and OY, these two rays, OX ray and OY ray, they are mutually perpendicular to each other. So since it's a 3D figure, so it may not look like 90-degree, but it is actually 90-degree angle. Similarly, the z-axis I'm going to take in this direction, right? So I have taken OX, OY and OZ. These are three axes that are mutually perpendicular to each other. This is also 90-degree, and this angle is also 90-degree, right? Now if I take a point here, then how would I determine the coordinates of this point with respect to these three axes? For that particular reason, what we do is that we draw a perpendicular. Suppose you are in a two-dimensional coordinate Cartesian system, then you take just two axes which are mutually perpendicular.
you call them OX and OY, and then if you take a point, say P, XY, then since this is a two-dimensional thing and you are just concentrating on a paper, right? Paper, because a paper is a very simple example of a two-dimensional plane, two-dimensional system. So all the points lying on that paper or axes on that particular paper, origin is also in that particular paper, piece of paper, or a plane, you can say. So if you want to determine coordinates of a particular point, what you do, what you have been doing so far, is that you just put perpendicular, drop perpendicular from the point on the x-axis. You call this length y, small y, this is y coordinate, and then from this perpendicular, foot of perpendicular M, you join O and you call it x. So basically what happens is that if in terms of vector quantities, if you add OM vector to say MP vector, what you are going to get? You are going to get OP vector, right? OP vector, and here this is the OP vector, this is the OP vector, and you know that if unit vector along a direction, if unit vector along a direction, a given direction is suppose n cap, and magnitude of a vector along n cap is suppose W, then W n cap is the vector. Here what I'm trying to explain is that suppose कि आप एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन गिवन है आपको, और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ या जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। और सपोज करिए कि उसी गिवन डायरेक्शन में के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक लंबाई का जो इकाई सदिश है या एक लेंथ का जो वेक्टर है, सपोज करिए कि वो वेक्टर n कैप है। हम लोग यूनिट वेक्टर को या इकाई सदिश को इस तरह से कैप नोटेशन लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज दैट दिस इज n कैप, और यू कैन से द यूनिट वेक्टर along this direction, इस दिशा में, जो ये दिशा इस लाइन से दिखाई जा रही है, इस दिशा में यूनिट वेक्टर अगर n कैप हो, तो उसी डायरेक्शन में अगर हम कोई वेक्टर क्वांटिटी लें, या ऐसा कहें कि n कैप की दिशा में अगर कोई हम वेक्टर लेते हैं और उसकी लेंथ अगर w है, सपोज करिए कि एक वेक्टर आपने एक वेक्टर लिया, मैं यहां पर समझाने के लिए कलर चेंज कर ले रहा हूं। सपोज यू टेक अ वेक्टर और उसी डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर लिया जिसकी लेंथ w है, तो ये वेक्टर क्या होगा? ठीक है, तो ये दिस वेक्टर w इज जस्ट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज अलोंग दिस n कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी w n कैप। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप डिटरमाइन ही इस तरह से करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर। अगर सपोज करें कि इफ यू वांट टू फाइंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर a, किसी वेक्टर a की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उसको आप a कैप से रिप्रेजेंट करोगे। और कैसे डिटरमाइन करोगे? a वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। यहां मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का मतलब ये हो जाता है कि ओवरऑल
ओवरऑल जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 बन जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एक तरीके से, नीचे तो केवल मैग्नीट्यूड ही है, जब न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इकाई सदिश का मतलब हुआ जिसका कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर किसी दी हुई दिशा में आपको यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, या यूं कहें कि उसके मैग्नीट्यूड को 1 बना देंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर पहले से आपको पता है n कैप, तो उसके डायरेक्शन में अगर वो w मैग्नीट्यूड का आप कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वो वेक्टर क्या होगा, w n कैप। ठीक है। अगर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात कर रहे होते तो वो वेक्टर हम लोग डब्ल्यू एन कैप ना लेकर के माइनस डब्ल्यू एन कैप ले लेते। ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें इफ वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 2D, then what we have been doing or what we have learned so far in our previous classes, that we drop a perpendicular from the point in 2D up from the point on x-axis, or you can also drop perpendicular on the y at the y-axis। तो अगर आप y-axis पे ड्रॉप करते तो भी वही बात होती। जो pn लेंथ होगी, राइट, जो पी एन लेंथ होगी वो x हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर जब आप x एक्सिस पे ड्रॉप करोगे तो वो सॉरी y एक्सिस पे ड्रॉप करोगे, दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड द परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट। और उसके बाद में फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ यू ज्वाइन o, देन यू विल गेट द अदर कोऑर्डिनेट। नाउ हियर if we exactly want to determine the coordinates of this point in 3D. Now we are talking about a space, and we have taken 3 mutually perpendicular directions to get the job done. That is to find the coordinates of this point. Then, if the coordinates of this point P are x, y, and z, then यहाँ पर हम लोग पॉइंट से x, y या z एक्सीस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करेंगे, जबकि हम लोग पॉइंट से उसके अपोजिट किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर प्लेन्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम लोग जब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीस इस तरह से ले लेंगे तो आपके पास में जो प्लेन होंगे, एक हो जाएगा xy प्लेन, दिस इज योर xy प्लेन, राइट। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा xz प्लेन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जो बैक साइड में हम लोग लेंगे, ये आपका हो जाएगा yz प्लेन, राइट, दिस इज योर yz प्लेन। तो xy प्लेन, xz प्लेन एंड yz प्लेन। अब अगर आप लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर डिटरमाइन करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को, तो आप इन तीनों प्लेन्स में से, और इन तीनों प्लेन्स को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं, ये भी मैं बता दूं, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एंड दीज 3 एक्सीज और दीज 3 डायरेक्शंस, ओके, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सीज। तो इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, then you need to draw perpendicular from the point not on the axis but on the coordinate planes। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं समझने के लिए कि xy प्लेन पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P पॉइंट से। सो नाउ if we drop perpendicular from P on the xy plane, then we will again get a point। हम लोग उस जैसे आपने ऊपर से एक परपेंडिकुलर नीचे फर्श पे ड्रॉप किया तो आपको उसका परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। सपोज दिस पॉइंट इज M, और ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा XY प्लेन में, ठीक। तो जब हम लोग पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे XY प्लेन पर, देन दिस लेंथ, ये जो लेंथ है, ये Z कोऑर्डिनेट होता है, उस पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट, ठीक। अब अगर हम लोग इस पॉइंट M से, ये पॉइंट कहाँ है, अब ये पॉइंट है
एक्स वाई प्लेन में, बिल्कुल ठीक, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है। और एक्स वाई प्लेन पर जब ये पॉइंट आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस को दिखा देते हैं, ओरिजिन और एम पॉइंट, राइट। इस पी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल चुका है, वो है इसका जेड कोऑर्डिनेट। अब जो एम पॉइंट है उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। वो पॉइंट चूंकि 2D में है और वो एक्स वाई प्लेन में ही लाई करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस एम पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करेंगे और वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पी पॉइंट के हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पी पॉइंट के एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पी और से दिस एम पॉइंट, देन जैसा कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या करेंगे हम लोग सपोज वी ड्रॉप परपेंडिकुलर to x axis and suppose this is the foot of perpendicular is n, तो जो ये mn लेंथ है this will be the y coordinate और जो ये on लेंथ हो जाएगी this will be the x coordinate। यहां पर 3D में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम लोग इस m पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम लोगों ने m से कहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x एक्सिस पर, तो हम लोग m पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं x एक्सिस पर और इसका नाम हम लोगों ने रखा है n, सो mn, राइट। और n से o को हम लोगों ने मिला दिया और दिस इज on। सो नाउ हम लोग अब यहां पर बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट P के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दिस nm, दिस इज y कोऑर्डिनेट, right, this is x coordinate and this pm is z coordinate, ठीक। now जैसा कि अभी आप लोगों ने यहां पे किया कि अगर हम लोग p पॉइंट है और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और उन x और y को कैसे हम लोग शो करेंगे, तो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम लोग दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ में OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर विल बी OM प्लस MP, ठीक है। या फिर यहां पर जैसे आप लोग अभी यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे कि यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर जिसकी लेंथ या जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप लोगों को पता है कि x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस के अलोंग, उसको हम लोग i कैप से लिखते हैं और जो y एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग j कैप से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको OM वेक्टर डिटरमाइन करना हो तो OM वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, व्हाट विल बी द OM वेक्टर हियर। आप इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक। तो OM वेक्टर आपका, OM वेक्टर की लेंथ क्या है, OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, OM की लेंथ x है और वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के डायरेक्शन में, और उसी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप। तो जैसा कि यहां बताया कि WN कैप हो जाएगा वो वेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, XI कैप। सो OM वेक्टर विल बी नथिंग बट XI cap and this MP vector will be nothing but length is y, ये जो लेंथ है ये y है, and unit vector is j cap, so this will be yj। और अगर हम लोग OP को वेक्टर को r वेक्टर से लिखें तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो r वेक्टर हो जाएगा, r वेक्टर that will be xi cap प्लस yj कैप, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बात देखी कि अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम में या 2 डायमेंशनल प्लेन में if we take a point p x y, then the OP vector will be x I cap plus y j cap
और इस ओपी वेक्टर को हम लोगों ने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, आर वेक्टर से। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इस ओपी वेक्टर को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहते हैं, स्थित सदिश, बिल्कुल पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। किसका, पी पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक, उसी बात को मैं यहां पर कंटिन्यू करना चाहता हूं कि अगर हम लोग ओपी वेक्टर यहां डिटरमाइन करना चाहें तो हमें यहां पर 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। देखिए, पहले हम सपोज करिए ओ से चलना शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग ओ एन की बात करेंगे, फिर एम से हम लोग एम से एम जाएंगे, और फिर एम से हम लोग कहां जाएंगे, पी जाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग ओ से चलना शुरू करें तो हम लोग 3 अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हुए we will ultimately reach at the point P. So here what I mean to say is the OP vector, or you can say R vector, or you can say position vector of point P with respect to origin O will be nothing but ON plus NM plus MP, right? So here ON, now ON is X into I cap plus NM is length is Y and the direction is Y axis. Length is small y, NM की length, और इसका direction Y axis के along जो unit vector है we represent it by J cap. So obviously, so ON is XI, NM is YJ and ultimately MP Z एक्सिस के पैरेलल है, और Z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग K कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर जो MP वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ZK. So in this way we can represent a vector quantity in 3-dimensional system. We can represent a vector quantity R in as xi plus yj plus zk, where these 3 are 3 components of vector R along 3 mutually perpendicular axes. मैं आपको फिर से जो आपको अभी जो कुछ काम मैंने दिया वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस के करीब हो जाएंगे, सब मिला लिए जाएं, वो करते रहेंगे। साथ ही साथ में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका क्या मीनिंग होगा, कहीं कुछ पैरेललोग्राम का एरिया या ट्रायंगल का एरिया से कोई रिलेशन है, ये चीज़ें। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको कि आप लोग बॉक्स ABC भी कहते हैं, ठीक है, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम। तो इसे भी आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर नहीं पढ़ रखा होगा जस्ट लेट मी नो ऑन द गूगल क्लासरूम, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है। और साथ ही साथ में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये कुछ काम है जो आप लोग वेक्टर कैलकुलस के लिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए कर लेना। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू फंक्शंस, वेक्टर फंक्शंस इन पर्टिकुलर। लेकिन उसके पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोग जो जानते हैं फंक्शंस के बारे में कि सपोज यू हैव अ रिलेशन लाइक दिस y equals fx and here x is, you call it independent variable, and y is your dependent variable, और इस independent variable की for every value of x that lies in some particular domain होगा इस function का, for every value of x, or you can say for every input you must be getting a unique output.
तो उसे आप लोग वेक्टर, उसे आप लोग फंक्शन कहते हैं बेसिकली। और अगर x सपोज करें कि रियल r में बिलोंग करता है, जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, यहाँ पर हम लोग अगर x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हम लोगों को वी विल गेट अ यूनिक आउटपुट हेयर, और वी विल बी गेटिंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। सो इट इज अ फंक्शन, और साथ ही साथ में जिसका डोमेन है दैट डोमेन इज r, क्योंकि हम लोग x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शन हैं, ये फंक्शन को हम लोग बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस भी हम लोग समझ सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली हम लोग का जो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे वो रियल वैल्यूड वेक्टर फंक्शंस पे भी हम लोग जब बात करेंगे तो वो भी रियल आउटपुट्स के साथ में ही होंगे। सो दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सो फंक्शंस को ही, कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग बात करेंगे वेक्टर फंक्शंस के बारे में। समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, चलिए एक let us take a vector like t I cap plus 2t j cap plus sin t k cap, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी आप देखिए t, इसका डोमेन क्या है, मतलब यहाँ पर t की वैल्यूज आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, t कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और साइन t में भी आप जानते हैं कि पूरी रियल लाइन पर या हर एक रियल एंगल पर हम लोग साइन t की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जो तीन कंपोनेंट्स हैं, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का के, तो वो सभी पूरे r पर डिफाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो t ले सकते हैं वो t पूरे r पर ले सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लूं, ये देखिए ut वेक्टर, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में t बस इस ये बताने के लिए लिखा है कि ये t का एक फंक्शन है, t पर डिपेंड कर रहा है। here t is again independent variable and overall this is a vector function, right? this is a vector फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, और उनका भी एक डोमेन होगा। जैसे यहाँ पर तो हम लोग अगर इस वेक्टर फंक्शन की इस एग्जांपल की बात करें, सो इट्स डोमेन इज आर, द होल रियल लाइन, ठीक है। अगर हम लोग कोई और वेक्टर फंक्शन ft वेक्टर फंक्शन लेते हैं, तो उसको भी हम लोग हमेशा जैसे कि r वेक्टर को xi प्लस yj प्लस z के तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक करके along x y and z हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से कोई भी वेक्टर फंक्शन, if we are taking any vector function, then we will be able to write it as f1t I cap plus f2t j cap plus f3t k cap, okay, f3t k cap। यहाँ पर ये बताना आप के लिए ज़रूरी है मुझे कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर dy बाई dx करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आपको जैसे e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही मिलता है, यानी कि डिफ्रेंशिएबिलिटी। जब हम लोग वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस और कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरह की चीज़ें आप लोग कैलकुलस में करते हैं, उसी तरह से वेक्टर कैलकुलस में भी हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट इट, we can easily do it with respect to t here because it is function of t. t is the independent variable. So यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये तो बहुत आसान है। आप f1 डैश t I cap प्लस f2 डैश t j cap प्लस f3 प्राइम t k cap. This is the differentiation. Actually, what is f1 prime t or f1 dash t? f1 dash t is nothing but d by dt, means differentiation of f1 की बात कर रहा हूँ. What is f1? Yes, this. What is f1 prime t? Okay, so this is just differentiation of f1 t with respect to t.
right? Similarly, we can find f2 prime t and f3 prime t. If we want to differentiate this ut with respect to t, we can do it directly. It will be I cap plus 2j cap plus cos t. Okay, sine ka differentiation cosine, so cos t to k cap. So in this way we can differentiate, and even we can integrate it also. If we integrate this ut, if we just integrate this ut, oh, this is very simple job to do here. Actually these differentiation and integration of vector functions are component by component. अलग अलग component का हम लोग differentiation उसी तरह से करते हैं या integration भी उसी तरह से करेंगे जैसा कि real valued functions का करते हैं. So here if you want to find ut dt from suppose 0 to t and ut is a vector quantity, so we will simply get, हम लोग यहाँ पर t का differentiation करेंगे and we will get t square by 2, right? और फिर जब यहाँ पर 0 से t इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को सीधे सीधे t square by 2 ही बचेगा. t square by 2 I cap. Similarly this will become t square j cap, so this will be t square j cap, and the integration of sine t will be minus cos t k cap. और हाँ, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 पर 1 हो जाएगी, तो आई थिंक यू विल गेट 1 माइनस कॉस टी. चेक कर लीजिएगा इसको, 1 माइनस कॉस टी के कैप. सो इस तरह से इन दिस वे वी कैन इंटीग्रेट also. So basically the idea is to extend the concept of functions, और you can say real valued functions या scalar functions ना, जैसे इसका कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, तो उसी आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करते हैं. हम लोग वेक्टर फंक्शंस की बात इस तरह से कर सकते हैं, राइट? Now I would explain what is a scalar field, and similarly what is a vector field, right? What is a scalar field and what is a vector field? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे. उसमें हम लोग एक पॉइंट की जब बात करते हैं, और हाँ, स्केलर फील्ड के लिए आप लोग यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन भी इसको कह सकते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन. और यहाँ पर हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी कह सकते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट? सो जैसे कि हम लोग 3 डायमेंशनल सिस्टम में बात करें, x, y और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर एक पॉइंट अगर हम लोग लें, P point, suppose the coordinates of this point P are x, y, z, right? Now, if we consider a function like f x y z is equal to suppose x square plus e to the power y minus 2z cube, राइट? या ऐसा कोई नहीं कि आप x और y अलग अलग, जैसे प्लस एक्स वाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एक्स वाई. तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, राइट? और दिस एक पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे 3D में, तो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरह से ट्रिपलेट जो होगा, 3 टपल इसे या ट्रिपलेट भी बोलते हैं, x, y, z. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेकर एक यूनिक पॉइंट हमें मिलेगा. और इस फंक्शन को चाहिए क्या? इस फंक्शन का इनपुट क्या है? इस फंक्शन का इनपुट कुछ और नहीं है बल्कि एक पॉइंट है, क्योंकि आप जब तक आप इसमें x, y और z तीनों इनपुट नहीं देंगे तब तक ये फंक्शन आप इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली दिस फंक्शन टेक्स एज इनपुट वेरियस और डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि x, y, z जो ये पूरा है ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट, इनपुट इज अ पॉइंट, and output
कैसी क्वांटिटी है एंड आउटपुट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. इसका कोई यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है. सो आउटपुट इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी एंड इनपुट इज अ पॉइंट. सो वी रेफर टू इट एज अ स्केलर पॉइंट function, right? So we call it scalar point function. Similarly अगर हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे तो जैसे हाँ यहाँ पर अगर मैं f1 0 1 करूंगा, 1 0 1 पर अगर हम f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी 1 प्लस e टू द पावर 0 अगेन 1 एंड -2 प्लस 0. सो ये क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, राइट. तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग इस स्केलर पॉइंट फंक्शन को या स्केलर फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं. सिमिलरली सपोज वी टेक अ फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस e टू द पावर y j कैप प्लस सपोज दैट you take -2z क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप वाई एक्स स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं कि वही मैं यहाँ पर लूँ, वो तो मैं समझाने के लिए बस ले रहा हूँ. सो देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि हम लोगों ने ऑब्वियसली एक वेक्टर फंक्शन लिया है. फंक्शन हम यहाँ पर अगेन आई एम कॉलिंग इट फंक्शन बिकॉज इट्स अ वेरिएबल टाइप ऑफ थिंग एंड इट डिपेंड्स अपॉन what you are going to take the values of x, y and z, or you can say a point. तो यहाँ पर भी आप अलग अलग पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो एक्स वाई जेड चेंज होंगे, उसके साथ में जो पूरा ओवरऑल ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये भी चेंज होगी. सो this time it's a vector function and it also depends upon different points. So this time you can write u x y z and it is function or vector quantity. So this is nothing but a vector point function. So in this way we define a scalar point function and a vector point function. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे अभी मैं तुरंत आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो इफ f इज सिंपली अ वेक्टर फंक्शन ऑफ सिंगल, यहाँ पर देखिए इनपुट इज ओनली t, सिंगल जो इनपुट है वो एक स्केलर है. स्केलर नेक्स्ट केस में भी स्केलर ही है इनपुट, लेकिन यहाँ पर अकेला एक t हम लोग एज इनपुट ले रहे हैं. वहां पर हम लोग पॉइंट्स की जब बात कर रहे हैं 3D में तो x y z इन ये पूरा ट्रिपलेट मिल करके तब एक पॉइंट बनता है. ठीक है. तो जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एफ टी की, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि किस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद थर्ड या सक्सेसिव nth डेरिवेटिव कैसे किया जाए. या और आसान कर दूं, सपोज आप लोगों को टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे टी स्क्वायर का तो 2t होगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि 2t is the sorry 2t is the second derivative of t 2t is the first derivative of t square and 2 is the सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, वो सारे सक्सेसिव डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे. इस तरह से हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू करूंगा, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगा, और वो आइडेंटिटीज जो होंगी वो बेसिकली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होंगी. आइडेंटिटीज, सम आइडेंटिटीज या सम रिजल्ट्स. सो इफ सपोज दैट यू आर टेकिंग a, मैं यहाँ पर t इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि a एक फंक्शन है और वो t का फंक्शन, जैसे भी हम लोगों ने r लिखा था t का फंक्शन या f लिखा था t का फंक्शन. सो सपोज at, और वो भी कैसा फंक्शन, वेक्टर फंक्शन. ठीक है. तो इफ at, bt and ct are differentiable vector functions of t,
देन देखिए डिफरेंशिएबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तभी इनके डेरिवेटिव्स तभी एग्जिस्ट करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई टू द पावर टी साइन टी टी स्क्वायर इनमें सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में जैसे अगर हम लोग 1/t की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड भी नहीं रह जाएगा, वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो वहाँ कुछ बहुत ही कम ऐसे केसेस मिलेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन से ही आप लोगों का सामना होगा बेसिकली ज़्यादातर केसेस में, नहीं तो आप उनको तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल। फिलहाल जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। अब मैं यहाँ पर टी को नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि इट्स ए इज अ फंक्शन एंड इज अ फंक्शन ऑफ टी। सो जो पहली आइडेंटिटी है वो है डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी, और ये उसी तरह से होगा जैसे आप लोग ऑलरेडी करते चले आए हैं, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, राइट। The second one is d by dt of dot product a dot b. This will be a dot db by dt plus da by dt डॉट बी। ध्यान रखिएगा इन रिजल्ट्स को, यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि देखिए दो वेक्टर्स के बीच में, ये भी वेक्टर ही होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स के बीच में इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही ले पाएंगे या क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव भी कर सकते हैं आप इसको बहुत आसानी से। तो यहाँ पर दोनों जगह डॉट प्रोडक्ट रहेगा। द थर्ड वन इज डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी and this is a cross db by dt plus da by dt cross b. The fourth one is d by dt gt at। देखिए यहां थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, यहां पर g जो है वो स्केलर है बट फंक्शन है, एंड a इज वेक्टर फंक्शन ऑफ t। दोनों t के फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर gt को जैसे हम ले ले t स्क्वायर और at को हमने ले लिया t i कैप प्लस t क्यूब j कैप प्लस e पावर t k कैप, उस तरह से मतलब हम लोगों ने एक वेक्टर फंक्शन लिया और एक स्केलर से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये this is equal to g da by dt plus dg by dt vector a. So these are some important or very useful results about the differentiation of a vector function.